حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ایک شیر کا واقعہ بحوالہ ابن اسحاق سیرت النبی اور ابن ہشام سیرت ابن ہشام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی، انہی دنوں مکہ کی سرزمین پر ایک سخت زمانہ آیا۔ بارش کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آسمان صاف رہتا مگر بادل نظر نہیں آتے تھے، کھیت کھلیان سوکھ کر زمین میں پیلے پڑ گئے تھے، کنویں اور چشمے خشک ہو چکے تھے، لوگ دور دور سے پانی ڈھونڈ کر لاتے مگر وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ قحط لمبا ہو گیا تو قریش کے سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہمیں مل کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اگر ایسا ہی رہا تو نہ ہمارے گھر بچیں گے، نہ ہماری اولاد اور نہ ہی ہمارے مویشی۔ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، سب نے مشورہ کیا اور پرانے رواج کے مطابق عدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لوگ کوئی بڑا کام یا مضبوط عہد کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن منگواتے اور اسے جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر قبیلے کے بڑے سردار اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ اب ہم سب ایک وعدے پر قائم ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا برتن منگوایا گیا، اسے خون سے بھرا گیا، پھر ایک ایک کر کے قریش کے بڑے سردار آگے بڑھے، سب نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبوئے اور اعلان کیا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور ختم ہو رہے ہیں، آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے، ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے اور دعا کریں گے، ہم اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، اگر بارش نہ بھی آئی تو ہم وہیں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ رات کے وقت آدھی رات کو قریش کے سب لوگ جمع ہوں گے۔ جب آدھی رات کا وقت قریب آیا، وہیں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ دبو کر قسم کھائی تھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلنے لگے، سب کا رخ ایک ہی طرف تھا، خانہ کعبہ کی جانب۔ ان لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے تاکہ کعبہ کے پاس جا سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر قریب آئے اور نرمی سے پوچھنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب رکے، اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، بارش رکی ہوئی ہے اور پانی کی کمی نے سب کو پریشان کر دیا ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ دبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں آتی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے۔ آج اسی وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، چچا جان آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ ابو طالب نے فوراً جواب دیا، نہیں بیٹے، وہاں مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، یہ سب قریش کے سردار ہیں، اگر میں ایک بچے کو ساتھ لے کر گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مگر ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اصرار کیا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بھتیجے کی یہ ضد دیکھ کر ان کا دل نہ مان سکا، آخرکار انہوں نے کہا، ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یوں ابو طالب نے اپنے ننھے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک ساتھ چلتے چلتے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ ادھر مکہ کے تمام بڑے سردار ایک ایک کر کے کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، گنتی کے مطابق کل 32 بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سب وہی تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بارش نہیں آتی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ جب مکہ کے عام لوگوں کو خبر ملی، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، ہر کوئی اس امید کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا کہ شاید آج بارش کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا، پورا مکہ جیسے ایک جگہ جمع ہو گیا، سب کعبہ کے قریب تھے، لیکن وہ 32 سردار جنہوں نے خون بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی وہ سب کعبہ کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے۔ انہی کے ساتھ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آئے تھے۔ جب ان لوگوں کی نظر ایک بچے پر پڑی تو وہ سب حیران رہ گئے، فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ابو طالب پر نگاہیں گاڑ دی۔
फिर कुछ लोग गुस्से में बोल उठे, ए अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अबू तालिब ने ये बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नर्म लहजे में कहा, ए मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाने काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा, आसमान पर कोई बादल न आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्के के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते रहे, मगर आसमान बिल्कुल साफ था। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थी। इस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से शराबूर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अबू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अबू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने ये बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग, मक्के के बड़े बड़े सरदार, रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम सिर्फ 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आया, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपश से लोग नढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अबू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पूछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चचा अबू तालिब के चेहरे से पसीना पूछा। ये देखकर अबू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ए मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो गए। सबने पुकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर फरमाया, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ।
ये सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार गुरूर से बोले, ये 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ए मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गया तो बारिश कभी ना आएगी। ये फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वो 12 जद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर वो 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यूं मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगू जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा। लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरवकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, पहले हल्के बादल उभरे, फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत सैराब हो गए, जमीन तर हो गई, नदी नाले भर गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वक्त निदा आई, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देता, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की उम्र में भूख की हालत में मक्का की गर्दालूद गलियों से गुजर रहे थे, कुछ फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अबू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अबू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं। वो पहाड़ों के दामन में खड़े थे जहां हवा की सरसराहट भी उनके दुख का मुदावा ना कर सकती थी। जमीन उनके कदमों को चूम रही थी, मगर वो जमीन पर नहीं, आसमानी हौसले पर कायम थे। आसमान के नीचे वो मासूम चेहरा जिस पर अभी अबू जहल का थप्पड़ लगा था, रोशनी से मुनव्वर था। आंसू बहने के बजाय इनकी आंखों से रहमत टपक रही थी। वो खामोश थे, मगर इनकी खामोशी खुद एक दुआ बन गई थी, जैसे जमीन और आसमान दोनों इनके जब्त के कायल हो गए हों। इतने में एक फरिश्ता नाजिल हुआ। इसके चेहरे पर नूर और लहजे में एहतराम था। इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी अबू जहल को जमीन में धंसा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, नहीं, वो नहीं जानता, वो अंधेरा है जिसने रोशनी को पहचाना नहीं। मेरा रब बेहतर इंसाफ करने वाला है। फरिश्ता अदब से झुक गया, आसमान पर वापस चला गया, मगर इस मंजर ने फरिश्तों के दिलों में भी लर्जा तारी कर दिया। जमीन ने वो दिन अपनी यादों में महफूज कर लिया जब जुल्म पर सब्र की इंतहा नजर आई, जब बद्दुआ के बजाय दुआ की गई। वो बच्चा जो दुनिया का सबसे अजीम रसूल बनने वाला था, इस दिन भी रहम का पैकर बनकर खड़ा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस दिन का वाकया अल्लाह ने हमेशा के लिए तारीख में सबत कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें जान सिक्के के अजमत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, मुआफी और रहमत में पोशीदा है। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ भी पुकार उठे, अफसोस, अगर इसे पैदा ना किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे थे, फिर भी संग दिल अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया। उसकी आंखों में ना तो नदामत का कोई कतरा था और ना शर्म का कोई असर। इधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने ऐसा वाकया देखा जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस एक तमाशा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गई। उनका सरदार गुस्से और हैरत में दोनों था। बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? फिर उसने खतरनाक अंदाज में कहा, ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये सच निकला तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
बल्कि उस दुनिया से मिटा देंगे। वो सरदार वाज़ेह तौर पर खौफ और दुश्मनी के मिले जुले जज्बात लिए हुए था और फौरन हुक्म दिया गया कि तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। यूं एक साजिश की शुरुआत हुई जो आने वाले वक्त में बड़े इम्तिहान और आजमाइश का सबब बनने वाली थी। अब वो यहूदी शख्स दोबारा अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर बन चुकी थी। ये मंजर देखकर वो यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान हो गया। वो एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ दौड़ा। अबू जहल के घर पहुंचकर वो बोला, भाई, आपके खजूरों के बाग की तमाम खजूरें पत्थर बन गई हैं। अगर आप उन्हें वापस ना ला सकें तो बड़ा माली नुकसान होगा। इसका वाहिद हल यही है कि तुम मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अबू जहल माफी मांगने वाला आदमी ना था, वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, आओ हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे और चचा घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू जहल वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू कहां से सीखा है? वो तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। वो कहा गया है, क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं पहाड़ के किनारे शेर या रच ने तो नहीं खा लिया? ये सुनकर चचा अबू तालिब फौरन चल पड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रोने लगे और कहने लगे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रच और हिरन वहां जमा हो गए। वो भी उस दर्द को महसूस करके रो पड़े और बोले, ए रसूल अल्लाह, आप ना रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ही लम्हों में चचा अबू तालिब वहां पहुंच गए। ये मंजर देखकर वो सदमे में रह गए, मगर फौरन तसल्ली देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। चचा अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। इसी रात चचा अबू तालिब अबू जहल के घर जा पहुंचे और कहा, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, हालांकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। उसने तुम्हारी खजूरें नहीं ली और ना तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा। इसकी आंखों के जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पगला देंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए और अबू जहल कुछ बोल ना सका, क्योंकि इस दिल में एक अजीब सी हकीकत घूम रही थी, मगर वो उसे तस्लीम करने से इनकारी था। दरअसल अबू जहल झूठा और संगदिल आदमी था। इसी रात मक्के के आसमान पर रोशन नूर जाहिर हुआ। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था कि इन आंसुओं से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। इधर यहूदियों को जब इस मौजज़ाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उसी कबीले में पैदा हो। एक यहूदी अपने मजहबी पेशवा के पास गया और वाक़या सुना दिया तो पेशवा ने कहा, मैंने उसे पहचान लिया है, यही वो नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। इसकी दो निशानियां हैं, एक इसके कंधे पर मोहरे नबूवत और दूसरी इसकी निगाहों में रहमत। जब किसी ने पूछा, क्या आप ईमान लाएंगे, तो वो खामोश रहा, सर झुकाकर बोला, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अबू तालिब शाम के तिजारती सफर पर जाते थे। इसी दिन भी अबू तालिब शाम के सफर की तैयारी कर रहे थे कि मोहम्मद आए और अर्ज किया, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब ने अर्ज मुस्तरद ना की। चुनाचे अगले दिन वो सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद काफिला बसरा नामी मकाम पहुंचा और वहां आराम किया। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसका एक बहुत बड़ा आलिम दीन था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले में एक नौजवान मुनफरिद नजर आ रहा है। उसके सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा साया बनाए साथ साथ चल रहा था। ये मंजर देखकर वो दंग रह गया। अपनी मजहबी किताबें खोलकर पढ़ी और समझ गया कि यकीनन इसी काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फिर उसने फौरन अपने किसी आदमी को कहा कि काफिले के सब लोग बुलाओ ताकि हम उन्हें दावत दें, और इस तरह काफिले के तमाम अफराद गिरजा में जा पहुंचे। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार,
यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने अर्ज किया, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने फरमाया, ए काफले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, उसकी पीठ पर मोहर नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि उस पर बहुत नजर रखो और उसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को उसका इल्म हो गया तो वो उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अबू तालिब ने हैरत से पूछा, आपको ये खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। फिर वो बोला, अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लेने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफला वहां से गुजर रहा है। वो फौरन उनके पास गया और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जाता है दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, कई दिन से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वो मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने कहा, तुम लोग उसे बेकार तलाश कर रहे हो, अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को भेजा है तो वो ही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही वापस चले गए और यूं दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अबू तालिब को गिरजा में बुलाकर कहा, देखा, तुमने मेरी बात सच साबित होती देखी। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वो जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरूने मुल्क ना जाओ, वापस चले। अगले दिन अबू तालिब ने बैरूने मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, मगर वहां कोई इंसान मौजूद ना था। ये देखकर काफला रुक गया और तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद कर्ब और दर्द पैदा हुआ। आपने देखा कि इंसानों को जानवरों की तरह बेचा जा रहा है। इनके जिस्मों पर जंजीरें थीं, इनके चेहरों पर खौफ था और औरतें चीख चीख कर अपने बच्चों को पुकार रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से एक कोने में खड़े ये सब देखते रहे। इनके चेहरे से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद अबू लहब वहां आया। उसके हाथ में एक कोड़ा था। वो गुलामों को मारता और बोलता, ये सब मेरा माल है, जो ज्यादा कीमत देगा वही उन्हें ले जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और निहायत नरमी से फरमाया, चाचा जान, क्या आपको उन पर रहम नहीं आता? ये भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, इन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? अबू लहब गुस्से से बोला, ए मोहम्मद, तुम हर काम में बोलने लगे हो, तुम्हें तिजारत का कुछ इल्म नहीं। ये गुलाम है, उनका काम बेचना ही है। तुम अपने बकरियों के साथ रहो और हमें हमारे काम में दखल ना दो। ये कहकर वो हंसा और अपने गुलाम को आवाज दी कि इसे यहाँ से हटा दो। गुलाम आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ की लोहे की जंजीर टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, कुछ पीछे हट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस जख्मी गुलाम को उठाया, उसके जख्मों पर अपने दस्ते मुबारक फेरे और फौरन उसका जख्म भर गया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। अबू लहब ने इस मंजर को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर खौफ पैदा हुआ, मगर गुरूर ने उसे छुपाए रखा। उसने सिर्फ इतना कहा, ये सब जादू है, और वहां से चल दिया। मगर वो गुलाम जो अभी अभी सेहतयाब हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और बोला, ए मेहरबान इंसान, आप कौन हैं जिनके हाथों के लम्स से जख्म भर जाते हैं, जिनकी आंखों में नूर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं वही हूँ जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो जुल्म के बदले रहम करता है, जो बद्दुआ के बदले दुआ देता है। ये सुनकर गुलाम के दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं, आपके रब के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, जाओ, अब तुम आजाद हो गए हो। किसी इंसान को गुलाम बनाना अल्लाह की मखलूक की तौहीन है। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद लोगों में से कई के दिल लरस गए। कुछ ने छुप कर कहा, ये बच्चा नहीं, अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। मगर अबू लहब के कानों तक ये बात पहुंची तो वो और गुस्से में आ गया। उसने कहा, मोहम्मद के दिल में नरमी है, मगर यही नरमी एक दिन मक्का के सरदारों के लिए जवाल बनेगी।
مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ آپ خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئے۔ راستے میں آسمان پر ایک نورانی بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پرندے ان کے پیچھے اڑ رہے تھے، جیسے کائنات بھی جانتی ہو کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے آنے سے زمین پر انصاف، رحمت اور روشنی پھیلنے والی ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر نہایت عاجزی اور محبت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے چہرے پر وہ نور تھا جسے دیکھ کر دلوں میں سکون اترتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے بندے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زمین سوکھ گئی ہے، درخت مرجھا گئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اے رب کعبہ، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ ابھی آپ کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ٹھنڈک پھیل گئی اور کچھ ہی لمحوں میں موسلادھار بارش برسنے لگی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بچے بارش میں ناچنے لگے، عورتیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، یہ دعا کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کے محبوب کی دعا ہے۔ ابو طالب کے چہرے پر بھی خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری دعا سے آج مکہ کو زندگی مل گئی، تم واقعی اللہ کے خاص بندے ہو۔ بارش کے بعد زمین ہری ہونے لگی، کنوؤں میں پانی بھر گیا، جانور دوبارہ چراگاہوں میں جانے لگے اور لوگوں نے خوشی کے مارے شکرانے کے نذرانے پیش کیے۔ مکہ کے سردار، جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چھوٹا بچہ سمجھتے تھے، آج حیرت سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ بچہ نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی راز ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ بن جاتا ہے۔ ادھر ابو لہب جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بولا، یہ اتفاق ہے، بادل پہلے سے تیار تھے، اس بچے کی دعا سے کچھ نہیں ہوا۔ مگر اس کے اپنے غلام نے جواب دیا، مالک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ویسے ہی آسمان پر بادل آئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ ابو لہب غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چیخ کر بولا، خاموش رہو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن اب مکے کے لوگوں کے دل بدلنے لگے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اللہ کے خاص محبوب اور آنے والے نبی ہے، جن کی دعا سے خشک زمین زندہ ہو گئی، جن کے چہرے سے روشنی نکلتی تھی اور جن کی زبان سے نکلے الفاظ میں قدرت کی تاثیر تھی۔ اسی بات پر ابو طالب کے چہرے پر غصے کے آثار اور حیرت ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اے محمد، تم دوبارہ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں پیچھے جانے کو کہا تھا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور عاجزی کے ساتھ جواب دیا، چاچا جان، مجھے آنے دیجئے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ ابو طالب نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر سخت لہجے میں بولے، محمد، یہاں مکے کے بڑے سردار موجود ہیں، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تم ابھی اس چھوٹی عمر میں کیا کر سکو گے؟ اگر تم چاہو تو شاید ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کے دل میں امید اور یقین قائم رہا۔ لوگ پھر سے دعا کرنے لگے، اے خالق کعبہ، ہمیں پانی عطا فرما۔ لیکن آسمان ویسا ہی صاف رہا، بارش نہ ہوئی۔ لوگ تھک کر بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہی موجود ہے۔ اس بار ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تم دوبارہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں کہا، چاچا جان، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب کا دل بگل گیا۔ انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، مجھے صرف ایک بار کعبے کے پاس جانے دیجئے، اگر میں وہاں گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ وہاں موجود مکہ کے سرداروں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولے، اے مکہ والوں، دیکھو پانی آ رہا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور بولے، کہاں پانی آیا؟ ہم تو گرمی سے مر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ پانی آ گیا۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، اے محمد، تم آگے بڑھو،
लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर ये छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल ना हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के सामने पहुंचे तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। इतने में अचानक मक्का की फजा बदल गई, काले बादल छा गए और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे मक्का और आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, ये मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ ये कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही वो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, उनसे कितना सबक सीखते हैं और उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से भी आंसू नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।